السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خبر در خبر میں خوش آمدید۔ آج 9 نومبر ہے اور یہ 9 نومبر کی تاریخ ہندوستان اور پاکستان یعنی بر صغیر کے دونوں ملک کے لیے بہت اہمیت کی حامل رہی۔ پاکستان نے آج کی تاریخ میں ہندوستان اور دنیا بھر کے سکھوں کو کرتارپور کوریڈور کا تحفہ دیا۔ پوری دنیا میں اس کا خیر مقدم کیا جا رہا ہے۔ وہیں ہندوستان کے لیے بھی آج کی تاریخ بہت اہمیت کی حامل رہی کہ ہندوستان کی سب سے بڑی عدالت یعنی سپریم کورٹ نے اجودھیا کی متنازع جگہ رام مندر کے حوالے کر دی۔ ہندوؤں کو کہا کہ وہ یہاں پر مندر بنا لے اور مسلمانوں سے وہاں مسجد بنانے کا حق چھینتے ہوئے کہا کہ انہیں دوسری جگہ پر مسجد بنانی چاہیے۔ خبر در خبر میں آج ہم اسی کی پوری تفصیل بتائیں گے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی بنیاد کیا تھی، کس بنیاد پر سپریم کورٹ نے کہا کہ وہاں مسجد نہیں مندر بنائے جائے اور مسجد کی تعمیر دوسری جگہ کی جائے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر کسی طرح کا اعتراض نہیں کیا جا سکتا ہے، کسی طرح کا تبصرہ نہیں کیا جا سکتا ہے، کسی طرح کی تنقید نہیں کی جا سکتی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ 1000 سے زائد صفحات پر سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے جو بابری مسجد رام مندر تنازع کے سلسلے میں آیا ہے، اور اس ججمنٹ پر اس فیصلہ پر تبصرہ کرنے کا، تنقید کرنے کا ہمیں اور ہر کسی کو حق حاصل ہے۔ سپریم کورٹ سپریم ہے لیکن گناہوں سے پاک صاف نہیں ہے۔ سپریم کورٹ سے بھی خطائیں ہوتی ہے۔ ماضی میں متعدد مرتبہ سپریم کورٹ نے خود اپنے ہی فیصلے کو پلٹ دیا ہے۔ پچھلے سال بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ تو کئی مرتبہ سپریم کورٹ ایک فیصلہ کرتا ہے اور جیسے غلطیاں ہوتی ہے، ریویو پیٹیشن داخل کی جاتی ہے اور بعد میں سپریم کورٹ کا دوسرا فیصلہ آ جاتا ہے۔ سپریم کورٹ کا احترام ہونا چاہیے، سپریم کورٹ کا وقار ضروری ہے، اسے ملحوظ رکھنا چاہیے۔ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں، سپریم کورٹ کا احترام کرتے ہیں، لیکن اس کے فیصلے پر آج ہم تبصرہ کرنے جا رہے ہیں اور آپ سب کو ہم دعوت دے رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے جس بنیاد پر فیصلہ دیا ہے، جو انہوں نے دلیلیں پیش کی ہے اور آدھا گھنٹہ جو انہوں نے ججمنٹ سنایا، اس سے جو باتیں نکھر کر آئی ہے، اس بارے میں آپ بھی تحقیق کیجئے، ریسرچ کیجئے، تبصرہ کیجئے اور جو کچھ آپ کے ذہن و خیال میں ہے کمنٹس باکس میں ضرور لکھیے۔ ہم اس سے کچھ فائدہ اٹھانے کی بھی کوشش کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبر در خبر شمس تبریز قاسمی کے ساتھ۔ سپریم کورٹ میں بابری مسجد اور رام مندر تنازع کے سلسلے میں جس مقدمے پر آج فیصلہ آیا ہے وہ ٹائٹل سوٹ کا آیا ہے۔ دو معاملہ سب سے اہم تھا۔ ایک تھا بابری مسجد کی شہادت کا جو 6 دسمبر کو مسجد شہید کر دی گئی تھی 1992 میں، اس بارے میں بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں۔ آج تھا کہ جو متنازع زمین ہے 2.77 ایکڑ، اس کا مالک کون ہے، وہ کس کا ٹائٹل سوٹ ہے۔ تو ٹائٹل سوٹ اور ملکیت کا مقدمہ تھا سپریم کورٹ پر اور اسی پر سپریم کورٹ نے اپنا ججمنٹ سنایا ہے۔ لیکن جو ججمنٹ سامنے آیا ہے وہ ٹائٹل سوٹ اور ملکیت کی بنیاد پر نہیں بلکہ آستھا اور وشواس کی بنیاد پر آیا ہے۔ ہندوؤں کا الزام تھا کہ بابر نے رام مندر توڑ کر بابری مسجد بنائی تھی۔ سپریم کورٹ نے ہندوؤں کے اس دعویٰ کو خارج کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے اپنے ججمنٹ میں صاف طور پر کہا ہے کہ یہاں ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے کہ بابر نے رام مندر توڑ کر مسجد بنائی تھی، بلکہ خالی جگہ تھی، وہاں پر مسجد کی تعمیر ہوئی تھی۔ البتہ سپریم کورٹ نے آثار قدیمہ کی رپورٹ کا کہیں نہ کہیں ذکر کیا ہے، اس کا اقرار کیا اور کہا ہے کہ آثار قدیمہ کی جو رپورٹ ملتی ہے اس میں یہ ہے کہ یہاں اس مسجد کے نیچے جو کھدائی کی گئی تھی اس میں کچھ ڈھانچے ملے ہیں اور وہ ڈھانچے غیر اسلامی تھے۔ وہ ڈھانچے مندر کے تھے یا کس چیز کے تھے اس کا سپریم کورٹ نے ذکر نہیں کیا، لیکن اتنا ضرور سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ وہ ڈھانچے غیر اسلامی تھے، کسی مسجد یا عیدگاہ کے نہیں تھے جیسا کہ اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اب وہ ڈھانچہ کس سن کا تھا؟ ہندوؤں کا دعویٰ یہ ہے کہ 5000 سال پہلے یہاں رام کی مندر تھی، اور وہ جو ڈھانچہ ہے جو آثار قدیمہ کی رپورٹ ہے ایسائی کی، اس نے کہا ہے کہ 2000 سال پہلے کا وہ ڈھانچہ ہے۔ ایک دعویٰ بدھسٹوں کا بھی ہے کہ وہاں بدھسٹوں کی ایک مندر تھی جسے توڑ کر مسجد بنائی گئی تھی، تو یہ کلیئر نہیں ہوا ہے۔ سپریم کورٹ نے ہندوؤں کے اس دعوے کو بالکل خارج کر دیا کہ رام مندر توڑ کر یہاں مسجد نہیں بنائی گئی تھی بلکہ خالی جگہ پر بابر نے مسجد بنائی تھی اور میر باقی نے 1528 میں مسجد بنائی تھی۔ مسلمانوں کے اس دعوے کو سپریم کورٹ نے تسلیم کیا اور ہندوؤں کے دعوے کو اس حوالے سے سپریم کورٹ نے خارج کیا۔ دوسرا معاملہ تھا وہاں پر نماز ہونے نہ ہونے کا۔ سپریم کورٹ نے اقرار کیا، اعتراف کیا اپنے ججمنٹ میں 22-23 دسمبر 1949 تک وہاں نماز ہوتی رہی۔ سپریم کورٹ نے ایک بات یہ کہی کہ 18ویں صدی تک، یعنی جب بابری مسجد بنی 1528 میں، اس وقت سے لے کر 18ویں صدی تک وہاں نماز پڑھنے کا کوئی ذکر نہیں ملتا ہے۔ سپریم کورٹ نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ یہ مسجد تھی 1528 میں بنی تھی
और मस्जिद ही थी। अब उन्होंने कहा कि 18वीं सदी तक नमाज पढ़ने का जिक्र नहीं मिलता है, तो मुझे लगता है कि बात लव है, क्योंकि जब मस्जिद थी तो मस्जिद में नमाज ही होती है। मस्जिद कोई स्कूल नहीं है जहां हाज़िरी रजिस्टर होती है, जहां हर वक्त नमाज पढ़ने के बाद दस्तखत किया जाता है, बल्कि नमाज पढ़ने के लिए जगह होती है। और जब 18वीं सदी के बाद नमाज पढ़ने का सबूत है और जिक्र है, क्योंकि वहीं से विवाद शुरू हुआ, जब से विवाद शुरू हुआ तब से नमाज पढ़ने का सबूत मिलता है। उससे पहले ज़रूरत ही नहीं पड़ी सबूत पेश करने के, लिखने की, जिसका मतलब है कि जब मस्जिद थी तो उससे पहले भी नमाज होती रही थी। और जहाँ तक ये कहना कि नमाज पढ़ने का सबूत नहीं मिलता है, तो नमाज ना पढ़ने का भी कोई सबूत नहीं मिलता। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा है कि नमाज ना पढ़ने का वहाँ कोई सबूत नहीं मिलता है। तो मुझे लगता है कि बात कहना ही दुरुस्त नहीं है कि मस्जिद का सबूत मिलता है और नमाज पढ़ने का सबूत नहीं मिलता है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने अपने जजमेंट में ये भी कहा कि 22-23 दिसंबर के दरमियानी शब में जो वहाँ मूर्ति रखी गई थी वो गलत थी। यानी सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मस्जिद के अहाते में और दरवाजे को तोड़कर या छलांग लगाकर वहाँ मूर्ति रखी गई थी और ये गलत हुआ, गैर आईनी था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को तस्लीम किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि 6 दिसंबर 1992 में मस्जिद शहीद कर दी गई थी और मस्जिद का तोड़ा जाना, मस्जिद का इन्हदाम गलत था। सुप्रीम कोर्ट ने इन सब बातों को तस्लीम किया। इन सब बातों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी किया कि निर्मोही अखाड़ा जो मुतवल्ली होने का दावा कर रहा था, उसके दावा को, उसकी मिल्कियत के दावा को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। शिया वक्फ बोर्ड ने अर्ज़ी दायर की थी, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब उस विवादित जगह का मालिक कौन है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी वाज़ेह नहीं किया कि 2.77 एकड़ ज़मीन पर किसका कब्ज़ा मोतबर माना जाएगा, इसका मालिक कौन है, इसकी मिल्कियत का दावा मुस्लिम फरीक़ों ने किया था, सुन्नी वक्फ बोर्ड ने और दीगर मुसलमानों ने। उस दावे को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और कहा कि मुसलमान इस जगह पर कब्ज़ा का दावा साबित नहीं कर सके। लेकिन फिर किसके कब्ज़ा का दावा साबित हुआ, किसकी मिल्कियत का दावा साबित हुआ, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बताया और ना जजमेंट में है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह किया कि विवादित जगह सरकार के हवाले कर दी। वहाँ पर रामलला बरजमान या राम जन्मभूमि के दावे को तस्लीम किया और कहा कि सरकार 3 महीने में एक ट्रस्ट बनाए और ट्रस्ट मंदिर बनाने का काम करेगा। और ट्रस्ट का एक अहम पेशकार उन्होंने निर्मोही अखाड़ा को बनाने का कहा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा ये किया कि मुसलमानों के हवाले से कहा कि अयोध्या में 5 एकड़ ज़मीन दी जाए जहां मुसलमान मस्जिद की तामीर करें। सुप्रीम कोर्ट को फैसला सुनाना था टाइटल सूट का, मिल्कियत का, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला नहीं सुनाया। अब सवाल यह है कि उस जगह का मालिक कौन था, उसकी मिल्कियत किस पर थी, सुप्रीम कोर्ट इस बारे में खामोश है। सुप्रीम कोर्ट ने वो जगह मंदिर बनाने के लिए हिंदुओं को दे दी और कहा ट्रस्ट के ज़रिए मंदिर बनाया जाए, और मुसलमानों को कहा कि उन्हें दूसरी जगह 5 एकड़ ज़मीन दी जाए। अब सवाल यह है कि मालकाना हक़ किसी का साबित नहीं हुआ, तो 2.77 एकड़ ज़मीन जो विवादित जगह है, किस बुनियाद पर हिंदुओं को दी गई, किस बुनियाद पर मंदिर बनाने के लिए वो जगह दी गई, और किस बुनियाद पर 5 एकड़ ज़मीन मुसलमानों को दी जाएगी, आखिर क्यों? साबित ये करना था, फैसला ये करना था कि इस जगह का मालिक कौन है। और जब मुसलमानों की मिल्कियत का दावा खारिज हो गया तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने किस बुनियाद पर 5 एकड़ ज़मीन मुसलमानों को दूसरी जगह दी है, ये एक सवाल है जिस सवाल पर गौर करने की ज़रूरत है और इस पर बहस होनी चाहिए। एक सवाल ये भी है कि जब तमाम मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों के दावा को तस्लीम कर लिया कि यहाँ मंदिर तोड़कर मस्जिद की तामीर नहीं हुई थी, 1949 में मंदिर मूर्ति का रखा जाना गलत था, 6 दिसंबर को मस्जिद का तोड़ा जाना गलत था, मुसलमान यहाँ नमाज पढ़ते रहे हैं, मुसलमानों का कब्ज़ा था, फिर किस बुनियाद पर मुसलमानों के दावा को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया? यह भी एक सवाल है, क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इस बात का इकरार किया और माना कि अयोध्या राम की जाए पैदाइश है, और इसका मुसलमानों ने भी कभी इनकार नहीं किया। मुसलमानों ने हमेशा कहा कि हम मानते हैं कि राम की जाए पैदाइश अयोध्या है। तनाज़ो इस बात पर है कि गुंबद के नीचे यानी जहाँ पर बाबरी मस्जिद बनी हुई थी वो राम की जाए पैदाइश है या नहीं, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई तबसरा नहीं किया, कोई जिक्र नहीं किया। और इसी पर असल तनाज़ो था, यह दावा किया जा रहा था कि हिंदू फरीक ये साबित करे कि बिल्कुल बाबरी मस्जिद यानी गुंबद के नीचे राम
प्रकट हुए थे, राम की पैदाइश हुई थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ नहीं कहा, हालांकि इसी पर असल तनाज़ुर था। इन सब के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने वो जगह हिंदुओं को दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में भी कहा कि किसी का अकीदा किसी से कम नहीं, यानी जितना हिंदुओं का यहाँ मजबूत अकीदा उतना मुसलमानों का भी मजबूत अकीदा है। किसी के अकीदे को कमतर और किसी के अकीदे को बड़ा या बड़तर नहीं कहा जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि फिर किस बुनियाद पर हिंदुओं के अकीदे को बुनियाद बनाते हुए उसे वही जगह दे दी गई और मुसलमानों को दूसरी जगह दी जा रही है। ये एक सवाल है और यह सवाल सुप्रीम कोर्ट से हम पूछ रहे हैं और बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट से पूछ रहे हैं। और इसलिए असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम जरूर है बट इनफेलेबल है, यानी सुप्रीम कोर्ट गुनाहों से पाक साफ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट से भी गलतियां हो सकती है। यही बात एडवोकेट जफर याब जिलानी साहब ने भी कही है कि सुप्रीम कोर्ट से गलतियां हो सकती है और हम रिव्यू पिटीशन दायर कर सकते हैं और करना चाहिए। मेरी अपनी राय पूछे तो हिंदुस्तान में मुतअद्दिद ऐसे फैसले सुप्रीम कोर्ट से आए हैं जहां रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को तब्दील किया है। हालिया मामला सबरीमाला मंदिर का है। केरला के सबरीमाला मंदिर के बारे में पिछले साल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, जिस फैसले की खुले आम हिंदुओं ने, पंडितों ने मुखालफत की। यहाँ तक कि मुल्क के वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी इस फैसले की मुखालफत की थी और 10 रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई है और इस बारे में भी अभी सुप्रीम कोर्ट को फैसला सुनाना है। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मुखालफत की जाती है, रिव्यू पिटीशन दाखिल की जाती है एहतराम के बावजूद। तो अगर आज कोई कर रहा है तो उसे करने का हक है, ये आइन के खिलाफ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के एहतराम के खिलाफ नहीं है। गोदी मीडिया जो जी न्यूज़ और आज तक जैसे चैनल है, अब वो ये कहने लगे हैं कि इस फैसले पर किसी को बोलने का हक नहीं है, किसी तरह का तबसरा नहीं होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, मुल्क की तरक्की की बात होना चाहिए। आखिर क्यों, जब तमाम फैसलों पर बहस हो सकती है, तबसरा हो सकता है, तो इस फैसले पर तबसरा क्यों नहीं। 1000 से ज़ायद पेजेस पर यह फैसला मुश्तमिल है। हमने अब तक तमाम फैसलों को रीड नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ सुना है, जो मोटी मोटी बातें आई है, उसी की बुनियाद पर हम आज खबर दर खबर में आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं। तमाम फैसलों को पढ़ने के बाद हम मुल्क के जो नामवर वकील हैं, दानिशवरान हैं, माहिरीन हैं, उनके साथ भी हम तबसरा करेंगे और पूरी तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। जजेस के साथ भी हम डिबेट करने की कोशिश करेंगे, बहस करेंगे और बताएंगे कि फैसले की बुनियाद क्या और फैसले की बुनियाद क्या नहीं है। लेकिन अब तक जो चीज़ें सामने आई है उसके हवाले से जो मुल्क के दानिशवरान हैं, माहिर वकील हैं, उनका यही कहना है कि फैसला आस्था की बुनियाद पर है, विश्वास की बुनियाद पर है, दलाइल और सबूतों की बुनियाद पर नहीं है। और उसकी सबसे बड़ी नज़ीर यही है कि अगर दलील की बुनियाद पर है तो या तो हिंदुओं का दावा दुरुस्त हो गया, मुसलमानों का दावा दुरुस्त होगा। अगर हिंदुओं का दावा मजबूत है, मुसलमान का दावा साबित नहीं हुआ, तो जगह हिंदुओं को दे दी गई। फिर दूसरी जगह पर मुसलमानों को 5 एकड़ ज़मीन देने का मतलब क्या बनता है? क्यों मुसलमानों को सुप्रीम कोर्ट ने 5 एकड़ ज़मीन दी है? सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले में कहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला जो 2010 में आया था वो इल्लीगल था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था और हमने जो फैसला दिया वो सही है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा मामला है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी फैसले को मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान तकसीम किया था। पूरी विवादित जगह उन्होंने 3 हिस्सों में तकसीम की थी। 2 हिस्सा हिंदू फरीक को उन्होंने दे दिया था और 1 हिस्सा मुसलमानों को दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि पूरी विवादित जगह एक फरीक को दे दी है और दूसरे फरीक के बारे में कहा है कि वो दूसरी जगह पर मस्जिद बना ले। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मिल्कियत का और टाइटल सूट का फैसला नहीं किया है। एक और बात जो सबसे अहम है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा मुसलमानों से कहा था कि हम आसार कदीमा की रिपोर्ट को अपने फैसले की बुनियाद नहीं बनाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज आसार कदीमा की रिपोर्ट को किसी न किसी हद तक अपने फैसले की बुनियाद बनाया और कहा कि खुदाई में जो चीज़ें मिली थी वो गैर इस्लामी थी, मस्जिद जैसी नहीं थी। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने आसार कदीमा की रिपोर्ट को फैसले की बुनियाद बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा यही कहा, साबिक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी यही कहा था कि टाइटल सूट ही फैसले की बुनियाद होगी। आस्था और विश्वास को सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बुनियाद नहीं बनाया जाएगा। लेकिन जो फैसला आया है वो साफ साफ तौर पर आस्था और विश्वास पर मबनी है, टाइटल सूट पर बिल्कुल ही फैसला नहीं दिया गया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जो सयाह और जो ज़ायरीन थे उनके जो सफ़रनाम में उसको बुनियाद बनाया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हम उसको बुनियाद नहीं बनाएंगे। तो साफ लफ्ज़ों में यही कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है आस्था और विश्वास की बुनियाद पर है और जो लोग
ट्विटर पर तबसरा कर रहे हैं उसमें से कई लोगों का ये कहना है कि आरएसएस का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं है। ट्विटर पर कुछ लोग लिख रहे हैं, कह रहे हैं हम ऐसा नहीं मानते, लेकिन जहाँ तक हमारी पर्सनल राय है तो यही है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को और दीगर फरीकों को रिव्यू पिटीशन दायर करनी चाहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इख्तियार में ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इस मामले में कुल 15 फरीक थे। 7 फरीक हिंदुओं की तरफ से थे और 8 फरीक मुसलमानों की तरफ से थे। 1 फरीक जमीयत उलमा हिंद है और 7 फरीक में सुन्नी वक्फ बोर्ड है, इकबाल अंसारी और कई लोग हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उन तमाम फरीकों की तरफ से पैरवी कर रहा था। अब अगर वो फरीक रिव्यू पिटीशन दायर करने से इनकार कर देंगे तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हाथ में कुछ बाकी नहीं रह जाएगा। अलबत्ता जमीयत उलमा हिंद के पास ये ऑप्शन है कि रिव्यू पिटीशन दायर करे, लेकिन जो अब तक जमीयत का बयान आया है, मौलाना अरशद मदनी ने जो प्रेस रिलीज जारी किया इस फैसले के बारे में यही कि हम इस फैसले को तस्लीम करते हैं और रिव्यू पिटीशन दायर करने के बारे में उनकी तरफ से कोई इशारा तक नहीं आया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि हम रिव्यू पिटीशन दायर करेंगे, लेकिन उसके इख्तियार में नहीं है, क्योंकि वो 7 फरीकों की तरफ से पैरवी करती है और जिन फरीकों की वो पैरवी करती है उसमें से 2 का नुक्ता नज़र सामने आ गया है। सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जफर फारूकी ने कहा है कि हम इस फैसले का एहतराम करते हैं, फैसले से हम गैर मुतमईन है, अनसेटिस्फाइड है, लेकिन हम रिव्यू पिटीशन दायर नहीं करेंगे। इकबाल अंसारी ने भी फैसले को तस्लीम किया और कहा है कि हम रिव्यू पिटीशन दायर नहीं करेंगे। अच्छा, एक मामला खत्म हो गया। अब कुछ और फरीक रह गए हैं, देखना है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उनको राजी करके रिव्यू पिटीशन दायर करने में कामयाब हो पाता है या नहीं। लेकिन ये बात ज़रूर है कि कुछ लोगों ने इस फैसले का एहतराम किया, तो कुछ लोगों ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट का एहतराम करते हैं, लेकिन फैसला खिलाफ हकीकत है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मुनावर अली रहमानी ने कहा है कि यह फैसला हकीकत के खिलाफ है, सबूत व शवाहिद के खिलाफ है, आस्था की बुनियाद पर आया है। मिल्लत टाइम्स में कई सारे दानिशवरान और माहिरीन की राय भी पेश की गई है। मिल्लत टाइम्स की वेबसाइट उर्दू में हम बहुत सारी रिपोर्ट ला चुके हैं। इसके अलावा मिल्लत टाइम्स की यूट्यूब चैनल पर भी बहुत सारे लोगों के नज़रिए से और उनके आरा से आपको आगाह किया गया है। आप मिल्लत टाइम्स को इस बारे में फॉलो करते रहिए। फिर हमारी मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। मिल्लत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।